ले तो बोले वही प्राणनाथ जी जब आए तो क्या लेकर के आए दुनिया में, तो कह रहे सबविद वतन शहीद। आखिर ये पावरफुल पुरुष क्यों कहा गया? इसीलिए पावरफुल कहा गया क्योंकि जागनी ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, इस स्वरूप की महिमा और स्वरूपों से भिन्न क्यों है? वैसे तो सभी स्वरूप मान्य है, ऐसे कोई स्वरूप नहीं है कि जो मान्य नहीं है। अक्षरातीत ने जिस जिस तनों में लीला की या जे तनों में लीला थे, ये तमाम तनो एक महत्वपूर्ण અને મહિમાયુક્ત તન છે, પણ તોય છતાં આખરી સ્વરૂપ જે મહેરાજ ઠાકુરની અંદર વિદ્યમાન થયું, એ સ્વરૂપની મહિમાનું વર્ણન એના કારણે થઈ શકે જે બ્રજને રાસમાં લીલા થઈ એ વિશેષ લીલા થઈ અને એ લીલાની અંદર પ્રેમનો પ્રસંગ આ દુનિયાની અંદર પ્રેમ નામ દુનિમીને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લાઈ ઇતકે જે આ દુનિયાની પ્રેમ કોને કહેવાય? ભક્તિના માર્ગમાં एक आत्मा के एक जीव या एक भक्त कैसे अपने आराध्य को मना सकता है या कैसे अपने आराध्य की भक्ति कर सकता है? तो बोले कोई पूजा पाठना मार्ग थी, कोई कर्मकांडना मार्ग थी, अनेक मार्गों थी फरतो फरतो जतो मानव वर्षों सुधी योग साधना कर्मकांडना मार्ग थी गुजरतो होय, પણ એવા માનવીની સીધી અને સરળ રાહ મળે એના માટે અક્ષરાતીત પૂર્ણ બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદે પહેલી વાર બ્રજના મંડળમાં શું કર્યું? પ્રેમનો પ્રસંગ સમજાવ્યો અને એ પ્રેમની પરિભાષા સમજાવી કે તમે જે યોગ સાધના માર્ગથી દુનિયાથી પાર થવા માંગો છો, એ યોગ સાધના એ જેટલા પણ હઠ યોગ, લય યોગ, રાજયોગ, ના જાને કેટલા યોગ છે, એ યોગોની અંદર આટલી બધી ક્રિયાકલાપોની અંદર બોલે યુગો વ્યતીત થઈ જાય, પણ જો તમે થોડું પ્રેમના માર્ગ ઉપર ચડો અને એ પ્રેમના માર્ગથી તમને શાયદ સરળતા પડે, એટલે વાણીની અંદર કીધું पंत होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक, कि यदि और मार्गों से जाओगे तो वर्षों लग सकते हैं। क्रिया योग सीखने में समय लग जाता है कई साल तक, फिर क्रिया योग पूरा हुआ तो फिर ध्यान योग, ध्यान योग पूरा हुआ तो समाधि योग, यानी एक योग को सिद्ध करने में तकरीबन 10 साल लगे, तो फिर दूसरे योग को सिद्ध करने में 20-30 साल लगे और समाधि योग में जाने के लिए व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि इतने समय तो मनुष्य के पास होगा नहीं અને આટલા સમય સુધી માણસનું ધૈર્ય તૂટી જાય, એટલે એ ધૈર્ય ના તૂટે એના માટે રાજજી આ વાણીની અંદર સીધો અને સરળ માર્ગ બતાવ્યો કે જે પ્રાણનાથજી આયા એ શું લઈને આયા? તો સબવિધ વતન સહિત, એ વતન સહિત આયા. વતન સહિતમાં શું શું આવે? તો કે ઇલમ, એમના પૂરા પરમધામનું જ્ઞાન, પ્રેમ, ઇશ્ક, जोश, आवेश, आ तमाम वस्तुनी साथे लईने आया। जे जेने पसंद आवे एने ए लई लेजो अने बाकी नहीं आवे तो ए छोड़ी देजो। એટલે प्रेममय मार्ग पर चढ़ा करके अब प्रेम करे तो किससे करे? तो बोले व्यक्ति को सबसे ज्यादा कोई प्रिय लगे तो अपनी चीजें ज्यादा प्रिय लगती, परायों की इतनी प्रिय नहीं लगती। भले बगल में घर पड़્યું હોય બીજાનું, પણ એના ઘરમાં આપણે ઝાડુ નહીં મારીએ, કોના ઘરમાં મારીએ? આપણા ઘરમાં. બગલનું ઘર ભલે ખુલ્લું પડ્યું હોય પણ આપણે બહાર જઈએ તો આપણા ઘરને આપણે તાળું કેમ? કારણ કે આપણને લગાવ છે, આપણે એની જોડે જોડાયેલા છે, આપણે આત્માનો લિંક છે, એની જોડે તાર છે। એ સંબંધ હોવાના કારણથી આપણે પરમધામને છોડી નથી શકતા। એટલે રાજ્ય વિચાર કર્યો કે બ્રજમાં સખીઓ આવી પણ પ્રેમ હતો લક્ષ્ય। આ તો મારું નથી, વાણીની ચોપાઈ શું કહે છે? પ્રેમ હતો લક્ષ્ય, પ્રેમ હતો પણ લક્ષ્ય નહીં હતું। પછી રાસમાં ગયા તોય છતાં પ્રેમ હતો પણ ક્યાં જવું એની ખબર નહીં હતી। હવે જાગણી બ્રહ્માંડમાં બ્રજ મહારાજે કીધું કે ચાલો સખીઓ, હું તમારી જોડે રાસ કરવા માંગુ। સખીઓ કહેવા લાગી कि तू कामी निर्लज पर पुरुष, हम तुम्हारे साथ ये रासलीला कैसे कर सकते हैं? हम यदि ये करेंगे तो हमारी तो इज्जत का कचरा हो जाएगा, और इसीलिए हम सखियां वृंदावन में नहीं गई।
यमुना के किनारे हमने मना किया और मना करने के बाद राज्यને 52 દિવસ સુધી છે. એક દિવસ તો જાય જ જાય. આપણે પણ એવા અડિયલ બુદ્ધિના થઈ ગયા ત્યાં કે ત્યાં આપણી બુદ્ધિ હઠ્ઠી બુદ્ધિ કહેવાય ને, જેને કહેવાય. એમ તો યોગમાં કીધું કે કેટલા પ્રકારના હઠ ખતરનાક હોય, તો બોલે સ્ત્રી હઠ, બાલ હઠ અને યોગ હઠ. આ ત્રણ હઠ બહુ ખતરનાક હોય. એ બ્રજમંડલમાં ખબર પડી કે સ્ત્રી હઠ કોને કહેવાય. 52 દિવસ થયો. દુનિયાનો કોઈ રિશ્તો હોય તો વાત છોડો, આપણો તો અનાદિ રિશ્તો હતો. સનમંદ મૂલ કો પાવપલ છોડ્યો ના જાય. આપણે રાજજી મહારાજ જોડે પરમધામની અંદર વાતો કરતા હતા કે હે રાજજી મહારાજ, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए पर हम आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे. पर ब्रजमंडल की जो ही बात आई, उस वहां पर आने के बाद हम सखियों ने सबसे पहले राज्य को कहा कि हे राज्य महाराज, आपके साथ हम रासलीला नहीं कर सकते. 52 दिन हो जाना यानी केवल 2 महीने में कितने दिन बाकी रह गए? केवल 8 दिन. इतने लंबे समय के अंदर हम लोग निरंतर अपने इस हठ योग में निरंतर चलते रहे. राज्य ने सोचा श्री कृष्ण जी के रूप में रोज गलियों में आना, रोज हमारे दरवाजे को देखना, रोज उन खिड़कियों को देखना. हम खिड़कियों को झांकते हैं, स्वयं राज्य देखते हैं. अरस परस हम एक दूसरे को देखते, पर कोई बोल सकता नहीं था. उस हठ योग के कारण धीरे धीरे अपना हठ योग तो हमने छोड़ा नहीं. राज्य सोचने लगे कि ये स्त्री हठ ऐसे ही संतों ने नहीं कहा, यहां सिद्ध हो गया 52 दिन का हठ योग. उस 52 दिन के हठ योग के बाद योग माया के ब्रह्मांड में भगवान पिता रात्रि सरदोत्त फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित योग माया में जाकर के स्वयं राज्य महाराज ने वहां जाकर के बांसुरी बजाई. और बांसुरी बजाने के बाद फिर सखियों को वहां बुलाया. और यहां जाने के बाद भी जल्दी तैयार नहीं हुए कि हम परमधाम चले जाए, तो भी सोच रहे कि राज्य महाराज और थोड़ा रास हो ही जाए. और वहां भी रास हुआ. और रास की लीला के बाद जो वियोग की घड़ी दिखाई, अब थोड़े तंग हुए कि ये वियोग सहा नहीं जाता. तब सखियों ने कहा कि राज्य महाराज कुछ ऐसा करो कि ये दुख और जुदागी ना हो. तो क्या कहा? हवे वाला एटू एटलू मांगू खीणे एक अलगा ना थईए, जी हाँ विरह नहीं चालो ते घर जइए. કે બ્રજ મંડલમાં 52 દિવસની જુદાગી, રાસ મંડલમાં પલભરની જુદાગી. પણ બોલે આ જુદાગી વારંવાર થાય. એ ધામધની એવી જગ્યા લઈ ચાલો કે જ્યાં જઈને અમને કોઈ જુદાગી ના સહન કરવી પડે, અમને કષ્ટ સહન ના કરવો પડે. રાજ્ય મહારાજે કીધું તમને એક જગ્યા લઈ જાઓ ને એનું નામ પરમ ધામ છે. આપણ સૌને રાજ્ય પરમધામ લઈને ગયા અને ત્યાં જઈને સખીઓને બેસાડીને પૂછ્યું કેવું લાગ્યું મારા બંને બ્રહ્માંડ? તો કે રાજ્ય મહારાજ તમારા બંને બ્રહ્માંડ અમારું કઈ વગાડી શક્યા? અરે અમને દુઃખ નામની વસ્તુ જ નથી મળી, હજી તો અમે ખાલીનો સ્વાદ નથી લીધો. આ તો એવું લાગ્યું જેમ ભજીયા ખાવાનો ને ભજીયાનો ટુકડો મળ્યો અને પ્રસાદ આટલું લાગ્યું કે જેમ ઘાડમાં રહી ગયું હોય, પણ હજી અંદર ગળે ઉતર્યું એટલે ઉતરવા જેવી હજી બાકી હતી ને ઉતરવા જેવું છે બાકી હતું ને એ અહીં લઈ આવ્યા એટલે સીધું ગળા સુધી પહોંચાડી દીધું. હવે તમે શ્વાસ લો તો એ તમને યાદ આવે કે ધરતી કોનું નામ અને બ્રહ્માંડ કોનું નામ. પલ પલ યાદ આવે. એટલે પલ પલમાં ક્ષણ ક્ષણમાં આપણને ધરતીના તમામ કિસ્સાઓને જોઈએ ત્યારે યાદ આવે. કોરોના કાલે ત્યારે હર વ્યક્તિ વિચાર કરે આપણે નહીં મરીએ ચાલે, બાકી બધા મરીએ ચાલે, કમસે કમ બીજાની જમીન તો મળે. આધા વિચારતા રહ્યા. ઘઉંના બધા સાફ થઈ જાય કઈ નહીં, પણ આપણે 10 ઘેરું બચી જવા જોઈએ. ફળિયો વિચારતો થઈ ગયો. અને એક ફળિયામાં જો એક કોરોના કેસ આવી ગયો ને એટલે હર વ્યક્તિ ચિંતન કરવા લાગ્યો આ ફળિયો સાફ થઈ જ જવાનો છે. પણ આ માણસ મર્યા નહીં પણ હોય તોય છતાં યાના રહ્યા, ધરતી છોડીને નહીં ગયા. તમે વિચાર કરો કે એવી વિકટ પરિસ્થિતિ. રાજ્ય કહે છે કે આ તમને થોડું ગળા સુધી લાય પણ પાછું નીચે ઉતાર્યું કે હવે થોડુંક હજી ઉતારવા જેવું છે. અપડાઉન કરવાની, જેટલું અપડાઉન થાય ને એટલું મજા આવે. અને ત્યારે સખીઓને ખબર પડે કે હા આવી કઈક ધરતી નામક વસ્તુ, આવું કઈક બ્રહ્માંડ નામક વસ્તુ હતી. એટલે રાજ્ય મહારાજ કે આવી જગ્યા લઈએ
બ્રજમાં તમારો પ્રેમ લક્ષ્ય વગર નહોતો. રાસમાં તમને એ ખબર નહીં પડી કે જવાનું ક્યાં, એટલે કીધું કે હવે વાલા એટલું માંગુ. કે ત્યાં પણ તમે માંગ્યું કે કોઈક એવી જગ્યા લઈને ચાલો, પણ બોલે જાગની બ્રહ્માંડમાં બધું આપું છું, એમાં કોઈ બાકી રાખવું नहीं. અને જે આપ્યું એ સબવિધ वतन शहीद कि पूरा परम धाम, पूरे परम धाम का आठों सागर, और उस आठों सागर में से जो इलम का सागर, वो इलम का सागर स्वयं अक्षरातीत बनकर के इस दुनिया में आए, और वो जो इस दुनिया के अंदर ज्ञान आया, ये ज्ञान बुंद रूप में आया, पर यहां भी सागर का रूप लिया. और ये सागर का जो रूप लिया, इसलिए इसी वाणी के ज्ञान के माध्यम से जो आखिरी स्वरूप जो ज्ञान लेकर के आया, और उसी स्वरूप के अंदर मेराज ठाकुर के तन में कितनी शक्ति विराजमान हुई? कितनी शक्ति? आपतम दुल्हिन, नूर हुकम, बुद्ध मूल वतन, ए पांचों मिल भई महामत. यदि हम मोहम्मद को उसके बराबर कंपैरिजन करेगा तो कैसा लगेगा? वहां पांचों शक्ति विराजमान नहीं हुई थी. इसलिए आखिरी स्वरूप का जो पावर था औरों की अपेक्षा कुछ अलग था. इसीलिए कहा कि दूज का चांद, पूर्णिमा का चांद, पर आखिरी स्वरूप को चांद का रूप नहीं दिया. क्या कहा? बपोरनो सूरज कीधुं डायरेक्टली. विचारवा जेवी वस्तु छे के केम भाई, यदि एनो एज पूर्ण ब्रह्म शक्ति, ए पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंदनी लीला एनी एज छे, पण केम एक स्वरूपમાં થોડુંક 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 કરતા કરતા લાસ્ટમાં જે પાંચમા સ્વરૂપની લીલાનું વર્ણન આવ્યું, તો કે પાવરફુલ હશે. કેમ પાવરફુલ? કારણ કે ઘોર હલાહલ કળિયુગની અંદર આપણે આવ્યા, ને એવા હળાહળ કળિયુગમાં બોલે સામાન્ય પુરુષ કામ કરી શકે નહીં. એટલે એ પરબ્રહ્મ આ દુનિયાની અંદર આવ્યા ત્યારે તમામ શક્તિઓની સાથે જાહેર થયા, અને તમામ શક્તિઓની સાથે જાહેર થયા એટલે એ પાવરફુલ પુરુષ છે. એટલે વાણીમાં લખ્યું છે, ઇન મોતી કો, बोलिए जरा, इन मोती को मोल ना कहो जाए, ना ही किन्हू कानों सुनाए, सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे. क्यों कहा वाणी में? क्योंकि ये आखिरी स्वरूप है. इसीलिए तो कहा, कोई दूजा मर्द ना कहा भी एक मेहंदी पाक पुरन, खेलसी मिल रस जागने 36,000 सरन सयन. कि ये आखिरी मोहम्मद है. कौन सा मोहम्मद है? आखिरी, और इसके बराबर और कोई नहीं. क्यों? तो बोले ये आखिरी पावरफुल बन के आया है, और पावरफुल शक्ति के साथ, इसीलिए अपने संपूर्ण ज्ञान के साथ एक होता है कुछ चीजों के साथ. पर लास्ट में राज्य ने कहा कि सब कुछ दे दिया जाए, और सब कुछ देने के बाद शास्त्रों में इसीलिए तो कहा सा विद्या या विमुक्त, कि आखिर ब्रह्म ज्ञान की इतनी ही महिमा क्यों है? तो बोले ये इसीलिए महिमा है क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान जब आखिरी टाइम में आएगा तो ये ज्ञानों में भी महाज्ञान होगा, और निज बुद्धि का ज्ञान होगा. क्यों निज बुद्धि का ज्ञान? क्योंकि इसी निज बुद्धि के ज्ञान के माध्यम से बोले स्वयं अक्षर ब्रह्म से परे उस परम धाम का ज्ञान होगा. और जब उस परम धाम का ज्ञान होगा तो दुनिया उसको केवल विचारती रहेगी कि वो कहाँ है, कैसा है, लेकिन दुनिया उसको जान नहीं पाएगी. पर आप सब सुंदर साथ उसको पहचान पाओगे, और जब पहचान पाओगे, इसीलिए किरंतन ग्रंथ में कहा, रेहू नहीं रेहू नाई सिद्ध साध संतरी भगत. कि मैं कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई संत, कोई भगवान, कोई देव देवी के नाम से जाहिर होने वाला नहीं हूं. मैं स्वयं प्राणनाथ जी के नाम से कल के स्वरूप के रूप, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में इस दुनिया के अंदर जाहिर होऊंगा. ये सारी बातें लिख दी थी, और जब लिखी थी इसलिए तो बुद्ध गीता में कहा, बुद्धो वही रूपो शाविश्वरम परात्परम ज्ञान पारम प्रापिता संभविष्यति कलयुगे. कि वो ज्ञान का महासागर होगा, और जो ज्ञान का महासागर जब इस दुनिया के अंदर आएगा तो बोले वही पार ले जाएगा. बाकी तो बोले दुनिया के अंदर अनेक चीज होगी, अनेक मतपंथ होंगे, लेकिन वो बोले दुनिया के अंदर गोल गोल घुमाएंगे, लेकिन पार नहीं ले जाएंगे. एक अक्षरातीत ही अपने ज्ञान के माध्यम से पार लेकर के जाएंगे. और यही बात जब गढ़ा की तरफ श्री जी साहब जाते हैं, और उस समय
श्री लालदास जी को कहा जाता है कि एक बार देखो कि कुरान में क्या लिखा है। तो कुरान में एक चीज लिखी थी कि उनका भाई मिलने वाला है, और उनका भाई जब मिलेगा तो क्या होगा। तो बोले ये दोनों मिलकर के, एक मूसा पैगंबर और उनका भाई, दोनों मिलकर के क्या करेंगे, तो उनकी पूरी कौम को बोले नील नदी से पार करवा देंगे। दूसरी फौजों को क्यों मना किया? वो इसीलिए मना किया कि जो आखिरी स्वरूप होगा, यानी जो प्राणनाथ जी के सानिध्य में रहेगा, उसका इस भव सागर से पार होना निश्चित है। और जब औरंगजेब की फौज का वर्णन किया तो बोले जो व्यक्ति आस्था लाने पर भी मना कर देता और आस्था नहीं लाएगा, नजीक आने के बाद भी सोचेगा ये तो एक पुरुष है, और ये एक पुरुष ऐसी भावना लेकर के जिएगा, तो बोले वो प्राणनाथ जी की पहचान नहीं कर पाएगा। और जब प्राणनाथ जी की पहचान नहीं कर पाएगा तो उस समय अवस्था क्या रहेगी? उस समय वैसी अवस्था रह जाएगी जैसे आदम को अजाजिल ने सिजदा बजाने से मना कर दिया, और फिर अजाजिल को लानत लगी कि जा रे अजाजिल, तूने आदम को सिजदा नहीं किया क्योंकि इसके अंदर मैंने अपनी रूह फूकी है, पर तूने इसको नमन करने से मना कर दिया। तब अजाजिल को लानत लगी, और लानत लगने के बाद अजाजिल को कहा कि तूने असली स्वरूप को पहचाना नहीं। इसी प्रकार जो महराज ठाकुर के तन में जो शक्ति बैठी है, उस शक्ति को जो व्यक्ति नहीं पहचान पाया, तो उस प्रसंग के लिए कुरान का अजाजिल वाला प्रसंग दिया कि यदि कोई नहीं समझ पाए तो अजाजिल और आदम की कहानी अवश्य समझे। भले अजाजिल ने आदम को बनाया था, लेकिन उसके अंदर जो रूह थी वो किसकी थी? स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की थी। भले आदि नारायण ने इन दुनिया के शरीरों को बनाया, भले इस दुनिया के अंदर हमारे ये मानवीय शरीर है, लेकिन उस मानव शरीर रूपी महराज ठाकुर के अंदर जो बैठी शक्ति है, उस शक्ति का नाम पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है। और उसी शक्ति को पहचानने के लिए वाणी कह रही कि जब उसको पहचान लिया तो समझ लीजिए कि आपने सब कुछ पहचान लिया। और इसीलिए ये प्रसंग हमें दोहरा रहा। मैं अगले वक्ता के माध्यम से जो प्रसंग चला उसी को ही आगे बढ़ाया हूं। इसीलिए खोल देखो वाणी प्राणनाथ, धनी लाए ध्यान से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। अगला जो प्रकरण है उसकी चौपाई करी। वतन विचारियां रे कि हम जिस दुनिया के अंदर आए हैं क्या क्या भूले, तो एक तो परमात्मा को भूले और अपने घर को भूले। तो बोले जो हम भूल गए इस दुनिया के अंदर आकर के, जहां इस दुनिया के मकानों को या दुनिया के घर सगे संबंधी को अपना समझ करके बैठे हैं, ये सगे संबंधी हमारे कुछ काल तक ही हमारा साथ देंगे। इस जन्म में ये हमारे सगे संबंधी हो सकता, अगले जन्म में हमारे सगे संबंधी नहीं रहेंगे। जैसे अर्जुन को एक बात का शोक था, विषाद था, और विषाद ये था कि मेरा पुत्र मर गया। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा पुत्र एकदम युवा था, इतना शक्तिशाली था और एक विशेष योद्धा था, ऐसा मेरा पुत्र मेरा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। यदि हो सके तो आप मेरे पुत्र से मुझे मिलवा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण लेकर के अर्जुन को स्वर्ग में जाते और वहां जाकर के अभिमन्यु से मुलाकात करवाते हैं। कहते कि देखो तुम्हारा यही पुत्र है। अर्जुन जाकर के देखते हैं और जाकर के कहते पुत्र, आप मुझे छोड़ करके इस दुनिया में आ गए, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकता। स्वयं अभिमन्यु कहता है कौन, किसका पुत्र? कई बार तो मैं तेरा पुत्र रहा हूं और कई बार मैं तेरा पिता रहा, कई बार आप मेरे पोते रहे होंगे, और ये युगों से चला आ रहा। मैं कभी तेरा कुछ और रहा, आप मेरे कुछ और रहे। यहां कोई पुत्र और रिश्ते का नाता संबंध चलता, जो संबंध का एरिया था वो संबंध का एरिया जैसे ही अंतरिक्ष पार हुआ, बोले अंतरिक्ष की धरा समाप्त हुई। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, इन तीनों लोकों के बाद जो ऊपर के लोक है, इन लोकों में संबंध देखे जाते नहीं है। आप कहां संबंधों को खोज रहे हो? बोले जो संबंध थे तेरा मेरा, ये सारा संबंध तो बोले धरती पर ही छोड़ दो। आप इस दुनिया में कहां संबंध को लेकर के आए? अर्जुन कहने लगे भगवान मुझे वापस ले चलो। और जब वापस आए तो जो विषाद था, सबसे बड़ा जो दुख था, कहा जाता ना कि व्यक्ति परिजन के बिछड़ने के बाद इतना दुखी हो जाता है
कि जिस दुख के कारण से खुद आत्महत्या करने को तैयार हो जाए। इतनी विकट परिस्थिति। सोचे कि जब अर्जुन का अभिमन्यु का वध हुआ और इधर जयद्रथ जिनके कारण से यह वध हुआ, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि या तो जयद्रथ मरेगा या फिर मैं आत्मदाह कर लूंगा। और वो तो भगवान की लीला थी, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। पर तो भी कहने का तात्पर्य है कि जब जब ये विकट परिस्थिति आई, तो इस विकट परिस्थिति में जहां संबंधों की बात आई, तो ये संबंध यहां दुनिया के हैं, वहां के संबंध सब हमारे आत्मा के संबंध है। और इसलिए आत्मा के संबंधों को याद करने के लिए वाणी कह रही, छले की ये हैरान की चीज, छल रूपी दुनिया में बैठे हो, ये आपको पग पग पर ये माया परेशान करेगी। आपको किसी और संबंध के नाम से, किसी और काम से इस दुनिया से बाहर निकलने नहीं देगी। हैरान करने का मतलब कि जो आना चाहता है उसको आने देना नहीं चाहती। घर में हर प्रकार के काम जागृत होते हैं। कोई सगा आता, बोले मेरे यहाँ शादी है, आ जाना। कोई कहीं और लेके जा रहा, कोई कहीं और लेके जा रहा। पत्नी कह रही ये काम आ गया, पति कह रहा ये काम आ गया, बेटा कह रहा ये काम आ गया। हजारों काम जब खड़े हो जाए और एक आत्मा का काम रुक जाता है, तो जब ऐसी अवस्था आ जाए, तो ये वाणी कह रही कि ऐसी अवस्था में केवल एक ही चिंतन किया जाए, कुलस्यार्थे एकम त्यजेत, कि कुल के लिए एक व्यक्ति की बलि देनी पड़े तो दे दो, छोड़ दो उसको। ग्रामम कुलम त्यजेत, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, कि गांव के लिए पूरे कुल को छोड़ दो। यदि पूरा गांव बचता हो और कुल नाश होता है तो वो नहीं दो, पर गांव को बचा लो। और अंतिम में कहा आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, कि यदि आत्मा को परब्रह्म तक ले जाना है तो पृथ्वी त्यजेत, पृथ्वी को भी छोड़ दो। तो इसीलिए हमारे ऊपर है कि हम किसको छोड़ना चाहते हैं। बाकी जिसको पकड़ो एक दिन तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए धनी आप बुद्ध भूलिया सुधना रे वृद्धिहान, कि अक्षरातीत ने हमें जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को लेकर के जो शुद्ध हमारे जीव को नहीं, उस जीव को शुद्ध दे और आत्मा के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को एक कल्याणमय मार्ग पर ले चले। इन्हीं के साथ मेरे शब्दों को यही विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।